Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and in this video we will see some phrasal verbs that were used in Hindu editorials. Alright, so these are common words. These are not something that we have randomly picked from books and everywhere. These have been written by editors in the Hindu editorial. Alright, so these were in news and these were talked about and these were used to express certain opinions in the newspaper. Alright, also friends, these phrasal verbs will be helpful for you in your NABARD grade A exam. Alright. Also friends, at iExamB we are offering a course related to NABARD grade A and you have a chance of saving flat 45% with the use of code B45. So hurry up, this offer is only till the end of this month, that is 30th of June. So I hope you will make the best of this offer. So friends, let's see some of the phrasal verbs now. First phrasal verb is elephant in the room. Now this means the main issue or the problem, right? So in Hindu, we had this sentence which meant, which said, the elephant in the room remains ignored. That is high inflation, which so and so, right? So now it says that जो high inflation है, which is rising prices, this is the main problem and it remains ignored, right? It is the elephant in the room. So elephant in the room here refers to high inflation. It is the main problem, right? तो अब देखें, अगर हमें खुद से एक सेंटेंस बनाना है elephant in the room से, तो वो क्या बन सकता है? While discussing environment-friendly urbanization, controlling migration was the elephant in the room. Means the main problem was that because so much migration is happening and our aim is to achieve eco-friendly or environment-friendly urbanization. So controlling migration is the main problem here, right? Because अगर जितने ज़्यादा लोग माइग्रेट होंगे उतनी ज़्यादा हमें जगह चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगा उनके लिए घर बनाने के लिए, राइट? सो लैंड के लिए पेड़ कटते हैं और इसीलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अर्बनाइजेशन जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मेन इशू या प्रॉब्लम होता है. ऑलराइट, ऐसे ही अगला ऐसा फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो द हिंदू में आया था. सो इट इज फोर्क आउट. अब फोर्क आउट का मतलब क्या होता है? मीनिंग कि मनी निकालना अपने खजाने में से, अपने पास में से किसी और चीज के लिए जिसके लिए वो मनी मेंट नहीं था. ऑलराइट, और स्पेशली अनविलिंगली आप वो निकालना पड़ रहा है आपको मनी. ऑलराइट, उसको फोर्क आउट बोलेंगे. जैसे द हिंदू में सेंटेंस था कि ऑन May 31st the center said there was about this amount, this crore in the GST compensation fund and forked out the balance from its own coffers. Coffers मतलब खजाना या तिजोरी. So it is saying that government ने बैलेंस अमाउंट जो था, जो भी रिक्वायरमेंट थी, तो बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट ने अपने खुद के कॉफर्स या तिजोरी में से निकाला. फोर्क आउट मतलब निकाला पैसा. ओके, सो ये सेंटेंस है फोर्क आउट का जो आपके द हिंदू में आया था. अब ऐसा सेंटेंस हमें बनाना हो तो सो यहाँ पर फोर्क आउट आ जाएगा. गिवन हिज ग्रैंडमदर्स हेल्थ कंडीशन ही नाउ हैव टू फोर्क आउट मनी फॉर अ फुल टाइम नर्स. ओके, सो क्योंकि ग्रैंड मदर की हेल्थ कंडीशन है इसकी वजह से पैसे निकालने पड़ेंगे. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज फिग लीफ. फिग लीफ क्या होता है? समथिंग जो आप, ऐसी चीज जिससे आप कुछ गलती या कुछ एम्बैरसिंग चीज हाइड करेंगे. ओके, सो द हिंदू में जो सेंटेंस आया था वो ऐसा था. If the EUA granted to Covaxin in January so and so despite no safety and efficacy data of the phase 3 trial is condoned as a desperate measure in ensuring greater vaccine availability, the regulator clearly has no fig leaf to defend the green lighting of the vaccines for children at this age. Means बोला जा रहा है कि जो रेगुलेटर है उनके पास कोई भी फिग लीफ नहीं है, यानी कि कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है अपनी गलती को. और गलती कौन सी है? हरी झंडी दे देना वैक्सीन्स को बच्चों के लिए, वो भी एट दिस स्टेज. जो स्टेज में आपका जो फेज 3 का ट्रायल का जो डेटा आया उसकी सेफ्टी और एफिकेसी का कोई अता पता नहीं है. तो इस स्टेज पे अगर रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया, हरी झंडी दे दी वैक्सीन्स को, वो भी बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है. दे हैव नो नथिंग, नो फिग लीफ टू डिफेंड द ग्रीन लाइटिंग. राइट,
फिर इसको हम खुद से कैसे बोल सकते हैं? खुद से बोल सकते हैं कि his act of kindness is a fig leaf to cover up the rudeness he had shown towards the public in the past year. इसका मतलब है कि इन्होंने his act of kindness, इस पर्सन ने जो पिछले कुछ सालों में रूडनेस दिखाई पब्लिक में, तो उसको छुपाने के लिए अब वो एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखा रहा है, राइट? सो फिग लीफ ऐसे यूज होता है, राइट? अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अप फॉर ग्रैब्स, मतलब अवेलेबल या रेडी टू बी वन और टेकन, राइट? अब देखिए कहाँ यूज हो सकता है। द हिंदू में आया द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स दैट विल बी अप फॉर ग्रैब्स इज सो एंड सो 10 लाख समथिंग, राइट? मीन्स जो टोटल वोट्स, अब जो वोट्स की बात हो रही है, जितने वोट्स अब कैंडिडेट, हर कोई कैंडिडेट खींच सकता है, टोटल है वो 10 लाख सो एंड सो, ओके? अब हम क्या लिख सकते हैं सेंटेंस? देयर आर मेनी पोजीशंस अप फॉर ग्रैब्स इन दिस कंपनी, जस्ट सबमिट योर रिज्यूमे हियर. So there are many positions that you can take up in this company. They are ready to be taken. They are available. Just submit your resume here. आप resume दे दो अपना, okay? Now next phrasal verb is bail out. Bail out means किसी को बचाना, right? किसी difficulty से निकालना, उसको हम bail out बोलते हैं, right? तो ये द हिंदू में कैसे यूज हुआ था? Commercial banks that are bailed out by a bad bank are likely to have little reason to mend their ways. This means कि commercial banks क्या होते हैं? वो थोड़ा उधार दे देते हैं, और अगर सपोज किसी का लोन, बैंक का लोन किसी ने वापस नहीं किया, तो बैड बैंक कहता है ठीक है आप हमसे थोड़ा पैसा ले लो, उसको भूल जाओ, उस पर्सन से मैं पैसे निकाल लूंगा. तो कमर्शियल बैंक्स विल बी लाइक ओके फाइन, आपने मेरा नुकसान की भरपाई कर दी, सो आई एम ओके विद इट. सो अगर ये एटीट्यूड है तो कमर्शियल बैंक्स कंटिन्यू करेंगे अपने वही तरीके अपनाना. दे विल नॉट इम्प्रूव, उनका सुधार नहीं होगा जब तक वो बैड बैंक उन्हें बचाते रहेंगे या बेल आउट करते रहेंगे, ओके? सो ऐसा द हिंदू में यूज हुआ था. और हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको? द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू बेल आउट द MSME सेक्टर फ्रॉम द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय द पैंडेमिक, ओके? तो मतलब कि MSME सेक्टर को पैंडेमिक में बहुत लॉस हुआ था, तो उसको लॉस से निकालने के लिए, MSME सेक्टर को लॉस से निकालने के लिए गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, ओके? नाउ नेक्स्ट वन इज टच और रॉ नर्व. टच और रॉ नर्व का मतलब क्या होता है? मतलब टू अपसेट समवन. तो द हिंदू में कैसे यूज हुआ था? फॉर अ गवर्नमेंट acutely sensitive to global rankings, the latest environmental performance index placing India last among all 180 assessed countries has naturally touched a raw nerve. मीन्स द गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू ग्लोबल रैंकिंग्स, क्योंकि उनको दिखाना है, उनको अच्छा लगता है कि जो हमारी रैंकिंग है वो अच्छी मेंटेन रहे. बट अभी जो असेसमेंट हुआ और उसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया लास्ट आया अमंग 180 असेस्ड नेशंस, तो दैट हैज डेफिनेटली अपसेट द गवर्नमेंट. इट हैज टच्ड अ रॉ नर्व, ओके? सो हम खुद से कैसे बना सकते हैं इसका सेंटेंस? It touched a raw nerve when she mentioned about his past relationship. So she was very upset while mentioning his past relationship. All right? तो चलिए एक आपके लिए do it yourself question है. ये आप मैंने आपको इसमें एक फ्रेजल वर्ब दे रखा है और इसका यूसेज दे रखा है, और अब आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और अपने से एक सेंटेंस बना के दिखाएं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का, राइट? तो इसमें यूसेज क्या था? द हिंदू में लिखा था however this well celebrated export spike needs to be viewed with a pinch of salt. तो अगर इससे आप मतलब निकाल पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए. Try to frame a sentence also, or comment your answer in the comment section below and I will reply to your answer personally. Alright, so this is all for today's video. If you like this video, please like and share it, and also we will come up with more such videos. तो ये आप देखते रहना. These will be very helpful for you because ये the most important thing is ये आजकल use हो रहे हैं phrases, right? So आपकी usage में, आपकी vocabulary building में और आपकी exams में ये आपको बहुत help करेगा. Alright friends, thanks for watching. Please subscribe to our channel if you haven't subscribed already.